Hello students, today you will learn lesson 18 of SS Standard 10, Price Rise and Consumer Awareness. As we know that the prices of the commodities is increasing day by day. Okay, कोई भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है after some month. Okay, so why it happens and what are the measures government can control price and consumer awareness. We know advertisement and in TV, okay, that जागो ग्राहक जागो, customers has rights, okay, customer के rights है against exploitation, against cheating. So we will study this in this lesson. First paragraph, page number 146. Among many economic and social problems of India, okay, economic and social problems, one is price rise. Continuous and constant rise in price in different field of economy at a high rate. High rate means speedily. भाव बढ़ते जाते हैं, dearness महंगाई बढ़ती जाती है. Is called price rise, which is a problem. But price rise along with stability is beneficial for country. Okay. If price rise increase at slow rate, okay, थोड़े कम स्पीड में थोड़ा कम प्राइस राइज होता है तो इट इज गुड फॉर इकोनॉमी. जनरली इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोड्यूसर्स. प्राइस बढ़ता है तो कंपनीज की प्रॉफिट बढ़ती है या तो बिजनेसमैन की प्रॉफिट बढ़ती है. Because of undecided profit, they get opportunities to set up new production units. When their profit increase, they start new factory or they establish new machine. Profit amount increases when production cost is less, but production cost should be less than price rise. Okay. कॉस्ट प्राइस अगर कम है सेल प्राइस से तो प्राइस राइज से प्रॉफिट होता है. सो द प्रोड्यूसर गेट्स एनकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट. तो बिजनेस में जो एंटरप्रीन्योर है, ओनर है, वो न्यू इन्वेस्टमेंट करता है, एक्सपांशन करता है, एक्सपांड करता है बिजनेस. एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन and employment increases. And when they establish new machines, start new factory, when their profit increase, they employ new people. Okay, new job are created, so more people get job. The employment increases. Due to increase in income, producers, organizers and businessmen can increase the wages of their employee. If profit of businessmen increases, so they can give more salary to its employee. Okay, wages to their employee. वो ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं, उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो. Thus, due to increase in income, purchasing capacity increases. अब वहाँ पे लोगों की सैलरी बढ़ती है, वेजिस बढ़ते हैं, तो their purchase power also increase. They can buy more things. Purchasing capacity increases, so money spent on usage of commodities increases. तो उन लोगों का स्पेंडिंग भी बढ़ता है. सपोज कोई फैक्ट्री में सैलरी ज़्यादा मिले, ओके, सब लोगों को, तो दे विल स्पेंड मोर मनी. तो यूसेज ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज, तो दे विल बाय फ्रॉम द मार्केट. तो मार्केट में तेजी आएगी. ओके, resulting into rise in the living standard. Their living standard will go up and speed of economic development. Economic development होगा. So it can be said that stable price rise is prerequisite of economic development. Stable, limited, controlled price rise is condition, prerequisite for economic development. Now, second paragraph, when there is noticeable increase in the price level of commodities or services
invariably and continuously at high rate. Invariably, okay, constant and at high rate, speed में जल्दी प्राइस राइज होता है बहुत. Then the production of instantaneous commodities and services do not increase but supply of money increases speedily. तो प्रोडक्शन तो बढ़ता नहीं बट सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस. Thus, excessive amount of money is used on comparatively less commodities. तो कॉस्ट प्राइस अप जाती है. कांस्टेंट प्राइस राइज हाई रेट पे होता है तो कॉस्ट प्राइस अप जाती है. सो money used on comparatively less commodities, supply of money increase speedily. Thus, excessive amount of money is used on comparatively less commodities and people have to spend more money because of price rise on commodities. लोगों को भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कुछ भी चीज खरीदने के लिए. This kind of price rise condition is called inflationary situation. Inflation मतलब फूलना, कोई भी चीज फूलना. तो this kind of price rise condition is called inflationary situation. ओके, इन्फ्लेशन रेट आता है इकोनॉमिक्स में तो उसमें परचेज पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस. High disturbance in prices, expenditure, income and calculation of price of production, equipment and their allocation generates serious disparity in economy by creating chaos in money supply. तो प्राइस राइज स्पीड में होता है तो इट क्रिएट केओस, डिस्पेरिटी इन मनी सप्लाई. तो बिजनेस करने में दिक्कतें आती है. कॉस्ट प्राइस अप जाती है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है और मार्केट में सेल प्राइस अप जाती है तो पीपल विल यूज लेस कमोडिटीज. ओके, दे विल बाय लेस आर्टिकल्स तो सेल कम होता है. इन सच कंडीशन प्राइस राइज एक्ट एज ए हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. तो इस तरह का प्राइस राइज है स्पीडली और हाई तो इट इज हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस है, प्रॉब्लम है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. थर्ड पैराग्राफ, प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी. Many times, in spite of decrease in inflation rates in economy, price of basic commodities or services used by common people increases. Inflation कम होता है इकोनॉमी में तो भी कभी कभी प्राइस राइज ऑफ बेसिक कमोडिटीज, बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका प्राइस राइज होता है. while the prices in other sectors show stable or decreasing behavior. तो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें प्राइस राइज होता है, बाकी अदर प्राइसेस रिमेन स्लो इंक्रीज. नाउ रीजन ऑफ प्राइस राइज. प्राइस राइज के रीजन क्या हो सकते हैं, क्यों भाव बढ़ते हैं मार्केट में. Mainly two factors are responsible for price rise due to lack of instantaneous increase in production and supply of commodities. प्रोडक्शन बढ़ता नहीं, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट में शॉर्टेज होती है. इन इकोनॉमी कोई भी चीज की शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस गो अप. ओके, इकोनॉमी में एक कॉमन प्रिंसिपल डिमांड एंड सप्लाई. सप्लाई कम है तो प्राइस अप जाएगी. ओके, ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू सप्लाई. डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, कंटिन्यूअस प्राइस राइज इज सीन तो प्राइस राइज होगी. फॉलोइंग रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. नाउ फर्स्ट, इंक्रीज इन मॉनिटरी सप्लाई. Monetary means money. If people have more money, they will spend more money. Okay, so demand will increase. Market में demand बढ़ेगी. Okay, people have more money, they spend more money, demand बढ़ेगी. Then
the seller, shopkeepers and producer will increase their prices. सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेज इन 3 ways. अब लोगों के पास पैसे कैसे ज्यादा आते हैं? सप्लाई ऑफ मनी हाउ इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी. फर्स्ट, बाय फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट. डेफिसिट मतलब वन टाइप ऑफ पिट. बाय जनरेटिंग न्यू मनी. गवर्नमेंट जनरेट न्यू मनी. और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी. मनी का सर्कुलेशन कंट्री में बढ़ता है. एज फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन मार्केट. ट्रांजैक्शन बढ़ता है. लोग लोन लेते हैं, स्पेंड करते हैं, या तो लोन लेके बिजनेस करते हैं. तो पीपल विल हैव मोर मनी. इफ मोर एंड मोर पीपल टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स and they start new business or spend money, then all over money in the country, all over running money, okay, circulating money in the country will increase. Third, to decrease rate of interest on debt. If bank decrease the interest rate कम करती है तो people will have more money. तो सेविंग टेंडेंसी विल डिक्रीज. लोग जो सेविंग करते हैं बैंक में वो टेंडेंसी डिक्रीज होगी. और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मोर एंड मोर पीपल विल टेक लोन फ्रॉम बैंक्स फॉर बिजनेस, फॉर बाइंग एनीथिंग, सपोज टू बाय 4-wheeler और टू बाय हाउस और स्टार्ट न्यू बिजनेस. पीपल विल टेक लोन फ्रॉम द बैंक इफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज. When there is increase in money, income of people, purchasing power, effective demand of commodities and services increase. When people have more money, they will spend more money. Suppose मेरे पॉकेट में ज़्यादा पैसे है तो my tendency on spending will increase. चलो ये लेते हैं. But total supply does not increase. People's purchase, बाइंग, शॉपिंग विल इंक्रीज. बट मार्केट में सप्लाई इतना जल्दी बढ़ता नहीं अकॉर्डिंग टू इट. सो प्राइस राइज इज देयर. तो प्राइस राइज होता है. इन ऑर्डर टू फुलफिल प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय जनरेटिंग न्यू मनी. अब फुलफिल प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को कभी कभी जरूरत पड़ती है तो they generate new money through deficit replacement policy. डेफिसिट रिप्लेसमेंट. डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, स्पेंडिंग ज्यादा है और इनकम कम है. व्हेन यू हियर बजट, एवरी ईयर आवर फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर बजट, इनकम ऑफ आवर कंट्री एंड स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री. एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो बीच में गैप रहती है. तो डेफिसिट रिप्लेसमेंट तो वो खाद, गुजराती में उसको खाद बोलते हैं. तो वो खाद बनने के लिए समटाइम्स गवर्नमेंट प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स. दिस इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गवर्नमेंट का बढ़ता है. सपोज न्यू स्टेट वॉज डिजाइन, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वेर डिक्लेयर्ड. नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, नए स्टेट बनाए गए तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विल इंक्रीज. या तो गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, रोड बनाने के, डैम बनाने के, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग विल इंक्रीज. तो ये जितने स्पेंड हो गए पैसे रोड बनाने में, डैम बनाने में, या तो नए डिस्ट्रिक्ट या स्टेट डिक्लेयर किए तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनाने के लिए नई पोस्ट क्रिएट होगी. डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, दूसरे ऑफिसर्स. ये जब नई पोस्ट क्रिएट हुई उन सब में खर्च बढ़ेगा गवर्नमेंट का. एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर. डिफेंस में सपोज फाइटर प्लेन खरीदना पड़ता है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट वेलफेयर स्कीम फॉर पुअर पीपल,
अब फेयर प्राइस शॉप पे या राशन कार्ड पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन देते हैं, दूसरी स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, मनरेगा एटसेट्रा. स्कीम एंड फेयर एक्सपेंडिचर ऑन सेलिब्रेशंस. ओके, सपोज रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, इस तरह का सेलिब्रेशन होता है बाय गवर्नमेंट. पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर लीड्स टू सडन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट. तो लोगों के पास गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, तो आफ्टर रोटेशन सर्कुलेशन पीपल विल अर्न मनी. वो सपोज नए रोड बनाने के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो वर्कर्स, इंजीनियर्स विल अर्न मनी. ओके, ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हुए कोई भी, तो उसमें जो मंडप वाले हैं, ओके, डेकोरेशन वाले हैं, लाउड स्पीकर, ओके, ऑडियो सिस्टम वाले हैं, दे विल अर्न मनी. So their earning will increase, and their earning will increase. So their life standard, okay, living standard will go up. They will spend more money, which increase purchasing power, resulting in increase in price level. तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे मार्केट में, तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे. Thus, increase in purchasing power becomes the reason of price rise. Okay, children, next part of this lesson you will study in next video.